Hello learners, today in my channel and in this video we are going to discuss about psychological tests. As you must be knowing that to understand or to study the behavior of an individual or to study the psychology of a person, certain psychological experiments are conducted, and these experiments or tests are done to study the behavior of a person in a standardized manner. So we can say psychological experiments or tests are the most scientific and objective method of studying behavior. So as you can see, I have written one definition which is given by Anastasi. Anastasi says a psychological test is essentially an objective and standardization measure of sample of behavior. यानी कि अगर हमको किसी के व्यवहार को समझना है एक परिमापीकृत तरीके से, अगर उसका मापन करना है तो वो हम कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा, एंड दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल टेस्ट. There are other definitions also as given by Freeman, who says a psychological test is a standardized instrument designed to measure objectivity, one or more aspects of a total personality by means of the samples of verbal and non-verbal response or by means of other behavior. यानी कि एक तरीका है, एक परीक्षण है जो प्रमापीकृत है और जिसको इस तरह से लागू किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो और जो वर्बल या नॉन वर्बल यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीके से हम किसी के व्यवहार को समझने की या मापन करने की कोशिश करेंगे. डगलस और हॉलैंड कहते हैं कि एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा परीक्षण वो होता है जो इस तरह से तैयार किया गया हो, इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया हो जिसमें जो सारी विशेषताएं हैं एक व्यवहार को समझने की, मापन करने की वो सब उसमें होनी चाहिए. अ गुड एग्जामिनेशन मस्ट पोजेस अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स become the basic principles underlying the construction of each test. A test is valid when it actually does measure what is supposed to be measured. यानी कि जो जिसका मापन करना है उसी का मापन कर रहा है अगर वो परीक्षण, तो वो परीक्षण बहुत अच्छा है, वो सही है. That test is perfect and adequate to study the behavior. तो ये कैसे पता चलेगा कि ये टेस्ट या परीक्षण सही है? सो लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज which is practical category and technical category. If we talk about technical category, then we have that means we have certain characteristics which are based on technical category or technical criteria which a test must have, which a psychology test must have, which is reliability, validity, objectivity, standardized and norms. So what does reliability mean? This I have already uploaded as a video. You can see that video and understand what does reliability, validity and objectivity means. So in short I'll explain it to you here that here reliability means vishwasniyata. That means it is the overall consistency of a measure. A test is said to have high reliability if it produces सिमिलर रिजल्ट्स और स्कोर्स अंडर कंसिस्टेंट कंडीशंस. अगर एक जैसी परिस्थितियां हैं और जो हमें स्कोर मिल रहे हैं, जो अंक मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है वो समान होना चाहिए, तो उसमें हम विश्वसनीयता मान सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हम किसी की हाइट नापते हैं, किसी का वेट नापते हैं मशीन से. So according to Anastasi, the reliability of a test refers to the consistency of score. उसके बाद हम आते हैं वैलिडिटी पे. वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता. It is the most important criteria for the quality of test. The term validity means to refer whether or not the test measures what it claims to measure. यानी कि जो उसका मापन करना है, जिसका मापन करना है उसी का मापन उसको करना चाहिए, वैध होना चाहिए. वो परीक्षण, वो टेस्ट वो वैध होना चाहिए. इट शुड बी वैलिड. एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी विच इज ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स द आइटम मस्ट कॉल फॉर अ डेफिनेट सिंगल आंसर. यहाँ पर
वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। उस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। द आइटम्स शुड लीड themselves to one and only one interpretation by students, यानी कि जब हम रिजल्ट देखते हैं तो सेम इंटरप्रिटेशन, सेम आंसर होना चाहिए। थर्ड इज स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रमाणीकृत होना बहुत ज़रूरी है, उसको स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे लागू किया जाना चाहिए जो ऐसा तैयार होना चाहिए परीक्षण कि जब उसको लागू करें तो हर जगह लागू हो सके, हर उस एज क्राइटेरिया में उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। एनी टेस्ट in which the scoring method remains fixed is called standardized test, and it may be in any form of test which may require certain answers. उसमें आपको जवाब देने होते हैं किसी तरह से yes और no में, या कोई fill in the blanks टाइप का होता है। इस तरह से उसका आंसर एक ही होगा, ये नहीं कि 4-5 आंसर होंगे, तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं माना जाएगा। और कुछ नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब होता है कि एक एस्पेक्ट है जहां पे जो स्कोर्स ऑब्टेन किए जाते हैं उसको किसी के साथ हम रेफर करके समझने की कोशिश करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं। सो देयर शुड बी द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑफ अ टेस्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड विदाउट नॉर्म्स। देयर शुड बी सर्टेन काइंड ऑफ नॉर्म्स। हमको जैसे पास और फेल कैसे होते हैं, तो एक नॉर्म सेटअप है कि 40% से ऊपर आए या 40 आए तो पास, और 40% से कम आए तो फेल। सो दीज नॉर्म्स आर टू बी फिक्स्ड इन अ टेस्ट। Now we will try to understand different types of tests based on various categories or headings. For example, the types of psychological tests on the base of standardization are 2 types, that is standardized test and non-standardized test. Standardized test प्रमाणीकृत, non-standardized अप्रमाणीकृत। Standardized test, just now I told you, they are prepared by psychologists and educationists, researchers, and administered on a very large group of sample, and after that the reliability, validity, norms etc. are calculated. तो यहाँ पे प्रमाणीकृत में ये सारी चीज़ें होती हैं जब बनाए जाते हैं ये टेस्ट। इनमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, मानक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, विषय वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वही नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जैसे स्कूलों में टीचर्स बनाते हैं, यूनिट टेस्ट बनाते हैं या बच्चों को सरप्राइज टेस्ट देते हैं, तो इस तरह के टेस्ट नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कह सकते हैं आप। तो ये हो गए आपके बेस्ड ऑन द स्टैंडर्डाइज। दूसरी कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 प्रकार के आपके टेस्ट होते हैं। पहला आपका होता है इंडिविजुअल, यानी कि वैयक्तिक यानी कि सिंगल पर्सन पे जब इसको एडमिनिस्टर किया जाए, और दूसरा आपका होता है समूह में, यानी कि ग्रुप में, यानी कि एक समूह में ये टेस्ट जब लागू किया जाता है या समूह के लिए जब बनाया जाता है तो उसको हम लोग ग्रुप टेस्ट भी कह सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है स्कोरिंग। स्कोरिंग में 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता है, और यहाँ पे वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ में किसी व्यक्ति का रोल होता है। जैसे कि स्कूल में टीचर्स किसी बच्चे को किसी एस्से में ज़्यादा दे दिए और किसी बच्चे को कम दे दिए, तो यहाँ पे व्यक्तिगत हो जाती हैं चीज़ें, उसको सब्जेक्टिव कहते हैं। और जब व्यक्तिगत नहीं होती हैं, मतलब राइट तो मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स मिलेंगे, और रॉन्ग है तो 0 मिलेगा। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। द स्कोरिंग मेथड इज अनअफेक्टेड बाय द सब्जेक्टिव जजमेंट इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। और सब्जेक्टिव में द स्कोरिंग मेथड अडॉप्टेड बाय द टेस्ट टेकर्स आर डिफरेंट। ये टीचर के ऊपर या स्कोरर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स देना चाहता है। नेक्स्ट हमारा आता है मीडियम यानी कि माध्यम। किस माध्यम से ये टेस्ट लिया जाएगा, दिया जाएगा? एक माध्यम है हमारा पेपर पेंसिल। पेपर पेंसिल का मतलब है पेपर पेन भी हो सकता है, और दूसरा हमारा है परफॉर्मेंस, यानी कि किस प्रकार से हम परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो पेपर पेंसिल में आपको
टेस्ट दिया जाएगा कॉपी में, पन्ने में, और उसमें आपको लिखना है, टिक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो डिपेंड करता है पेपर पेंसिल में आपको कैसे देना है। और नेक्स्ट आपका आता है परफॉर्मेंस में किस प्रकार से आप प्रदर्शन करते हैं। कोई आपको पिक्चर दे दी जाए, कोई नाट्य रूपांतर के रूप में दिया जाए, तो वो कैसे करना है। और ये बहुत कम होता है, फ्यू टेस्ट आर अवेलेबल ऑन दिस। ये बहुत कॉमन है, बहुत आम है पेपर पेंसिल टेस्ट। लास्ट कैटेगरी है हमारी ट्रेड्स की, यानी कि गुण के आधार पर। पहला है पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि व्यक्तित्व का परीक्षण। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। एबिलिटी टेस्ट, यानी कि क्षमता परीक्षण। दैट मीन्स दीज आर 3 सब कैटेगरीज टू मेक पर्सनालिटी टेस्ट और टू गिव और टू असेस पर्सनालिटी, psychological test. So according to the traits, these are the 3 subcategories and we'll take these 3 one by one. Now as you can see, we are taking it one by one, the subcategories. First subcategory is personality test. In this personality test there are various types. First one is personality inventory, जहाँ पे व्यक्तित्व को नापेंगे। नेक्स्ट है हमारा वैल्यू टेस्ट। वैल्यू टेस्ट में हम नापेंगे मूल्यों को, वैल्यूज, एथिक्स। Third one is adjustment, where we will see how the person adjusts according to the situation. This is known as adjustment inventory या समायोजन का परीक्षण। Next one is प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन टेस्ट, किस तरह से प्रोजेक्ट करता है अपने पर्सनालिटीज को, वी कैन सी थ्रू अ टेस्ट। एंड लास्ट वन इज इंटरव्यू टेक्निक, वेरी कॉमन व्हेन वी गो इन फॉर दी जॉब इंटरव्यूज। सो ये कुछ कैटेगरीज हैं पर्सनालिटी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब कैटेगरी में, the second category which is the achievement according to the traits, और जो गुण के आधार पे है उपलब्धि परीक्षण। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस। सब्जेक्टिव मीन्स जस्ट आई टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, these are there are certain outcomes according to which a person tests, and here certain things cannot be measured objectively. For example, in an essay, it depends what the teacher gives marks. A child may get 8 out of 10 and another may get 7 out of 10. It depends on the teacher how or he or she is marking the essay. So that becomes a subjective type. Then next one is objective. For example, you can say fill in the blanks, or you can say true, false. These are objective types of tests. Performance test, where how does a person performs, how does a person fares in a particular given situation. The problem related to any matter of the individual is to find out and try to eliminate the problem. How a person faces a problem, how he solves it. In this lab tests are there, in this certain machine tests are there. So these come under performance test. For example, in computer exams, how we perform during a practical computer exams. So these come under achievement test. लास्ट सब कैटेगरी इज एबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे हम क्षमता का परीक्षण करते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्रिएटिविटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट बुद्धि परीक्षण, क्रिएटिविटी टेस्ट सृजनात्मकता परीक्षण। Intelligence test, it measures general intelligence of a person, of an individual, of the subject, and indicates his adjustment. For example, Jalota general mental ability test, Raven's intelligence test, all these come under ability test. Next one is creativity test, where we measure the basic skills of an individual, how creative a person, how a person can create a thing or solve a thing. So here creative thinking of the person, of the subject is tested or measured. So the creative tests measure the cognitive process such as thinking divergently, making associations, constructing. For example, we have paired association test, we have free association test, जहाँ पे हम लोग सहचर्य के नियम को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये creativity test में आ जाता है. So in this way certain tests are measured. There is a third category which is aptitude test, यानी कि अभिवृत्ति परीक्षण. यहाँ पर हम अभिवृत्ति जानने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट की, वेयर वी मेजर स्पेसिफिक एबिलिटी इन द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एन इंडिविजुअल. जहाँ पर हम मेजर करते हैं, जैसे कि हम टीचिंग एप्टीट्यूड मेजर कर लें किसी भी बच्चे की कि टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे होती है, या हम मेजर करें कि उसकी अकाउंटिंग की एबिलिटी कैसी होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में,
इस तरह से, या हम टाइपिंग की एबिलिटी कर लें, या हम क्लरिकल एबिलिटी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आती हैं. सो लर्नर्स, दीज आर सर्टन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट which we have understood today, and I will keep on taking tests or psychological tests one by one and try to explain how they can be implemented and what do they indicate. Thank you for watching my channel. Do subscribe if you have not done so, and share and like my video. Thank you for watching.